روکنے کی. پھر آگے بڑھیے تو یہ کشمیر کا جہاد آ جاتا ہے. پھر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا. اس طرح سے پھر یہ سب معاملات ہیں. تو اس کی وجہ سے بھارت ہمیں شک کی نظر سے تو دیکھے. سرخی لگی ہوئی تھی وار ٹل وکٹری, اور وکٹری کا حال یہ تھا کہ ادھر ڈھاکہ میں ہمارے جو عسکری قیادت تھی وہ ہتھیار ڈال چکی تھی. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا. تو اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سر سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی طرف جو کلیشز چل رہے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر پاکستان کا کیا رول ہے؟ اور آج جو ایک جماعت اسلامی کے ہے مولانا چترالی, ان کی میں دیکھ رہی تھی ایک انہوں نے اسمبلی میں بات کی اور انہوں نے کہا جی پاکستان کو جہاد پہ جانا چاہیے. وہاں پر پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے اور دوسرے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ آخر کس دن کام آئیں گے اگر ہم ابھی نہیں استعمال کریں گے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ دیکھیں, یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا مقصد صرف پاکستان میں لوگوں کو اکسانا ہے, اور جو اکسانے والے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی سیاسی سپورٹ حاصل کرنا یا چندہ جمع کرنا ہے. ورنہ پاکستان میں فلسطین کے نام سے نعرے 1948 سے اب تک لگ رہے ہیں, لیکن نہ پاکستانی جا کر وہاں کچھ کر سکتے ہیں, نہ یہ ہمارے بس میں ہے. رہ گیا مسئلہ ایٹم بم کا, تو یہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایٹم بم جو ہے وہ ملک کو کسی اور کے ہاتھ تباہ ہونے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنٹ, کہ کوئی اور حملہ نہ کرے یہ سوچ کر کہ بھائی ہم ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور یہ زیادہ نقصان پہنچا سکیں گے. اس کا مقصد کسی اور کے اوپر ایٹم بم گرانا نہیں ہوتا. ویسے بھی اگر پاکستان جا کے اسرائیل پہ ایٹم بم گراتا ہے تو جو بھی یہ حضرات ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور فلسطین بہت چھوٹا سا علاقہ ہے, تو جو بم گرے گا اس میں مسجد اقصی اور مسلمانوں کی بھی تباہی خدا نخواستہ ہو جائے گی. ایسی باتیں کرنا غیر ذمہ دارانہ ہے. پاکستان میں آگ لگانے سے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور پاکستان میں چندہ جمع کر کے اور یہ نعرے لگا کے کہ ہم جہاد پہ جانے والے ہیں, اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لیڈر جو جہاد کے نام پہ نوجوانوں کو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ امریکہ پڑھنے بھیجے جاتے ہیں, برطانیہ پڑھنے بھیجے جاتے ہیں, اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, اپنے بچوں سے جہاد نہیں کراتے, دوسروں کے بچوں سے جہاد کراتے ہیں. تو میرا بھی پاکستانیوں کو مشورہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے نیک جذبات اپنے دل میں ضرور رکھیں, لیکن اس سے آگے فی الحال پاکستان کا کوئی اور کردار نہیں ہے. سیاسی طور پر پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے, شاید آئندہ بھی کرتا رہے گا. سر جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت اویئرنیس آئی ہے, اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی آواز کو جیسے کہنا چاہیے کہ بیک سٹیج ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ان کی بات نہ سنی جائے. اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا نام بھی آتا ہے کہ آپ سے بھی جو ہے آپ کو ٹی وی چینلز اور وہاں پہ جو ہے منع ہے کہ آپ سے آپ کا انٹرویو نہیں ہو سکتا. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے سر یہ بات ہے کہ لوگ اب سچائی کو جاننے لگے ہیں اور لوگوں کچھ سمجھدار ہو گئے ہیں پہلے سے. آپ کو لگتا ہے سر اگر 60s 70s میں بھی سوشل میڈیا ہوتا تو اس طرح سے جو پاکستان میں ہمیشہ سے فوجی حکومتیں رہی ہیں وہ نہ رہی ہوتی ہیں؟ اور ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھ لوں سر کہ جو بنگلہ دیش جیسے ہم سے الگ ہوا وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے چلا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو کے آج ہم سے ہر چیز میں ہی آگے, چاہے ایجوکیشن ہو چاہے اکانومی ہو؟ پہلے تو حقائق کے مسئلے پہ بات ہو جائے. پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے, اور یہ صرف عسکری حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے. بعض سویلین حکومتوں نے بھی ماضی میں بہت زیادہ سینسرشپ رکھی, معاملات کو دبا کر رکھا. مجھے 1971 کا یاد ہے کہ پاکستانی اخبارات میں کہیں کوئی ذکر نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اور اتفاق سے میں اپنے ایک عزیز کے ہاں گیا, چھوٹا تھا میں عمر میں, گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور, تو ان کے پاس کسی نے چھپا کر برطانیہ کے اخبارات پرانے لا کے رکھے ہوئے تھے پچھلے 2-3 مہینوں کے. وہ جب میں نے پڑھنے شروع کیے تو میری آنکھیں پھٹنا شروع ہوئی کہ یہ تو دنیا میں یہ سب بات ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو غلط فہمی میں رکھا. حقائق دبانے سے اور کچھ نہیں ہوا, صرف یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. 16 دسمبر کا اخبار جو ڈان ہے وہ میں اس کا صفحہ اول ہمیشہ 16 دسمبر ہر سال 16 دسمبر کو ٹویٹ کرتا ہوں کہ لوگوں دیکھو یہ حقائق دبانے کا یہ نقصان ہوتا ہے. سرخی لگی ہوئی تھی وار ٹل وکٹری, اور وکٹری کا حال یہ تھا کہ ادھر
ढाका में हमारे जो अस्करी क़यादत थी वो हथियार डाल चुकी थी, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, तो अपने ही लोगों को गुमराह करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी हुकूमतों को ये अच्छा लगता है कि हकाइक बताकर लोगों को आमादा, देखिए हकाइक बताकर आप ये भी कर सकते हैं, लोगों को मुतहर्रिक करें और कहें भाई हम कमजोर हैं, जरा आओ हम मिलजुल के अपनी कमजोरी दूर करें। ये करने के बजाय हम लोगों को अपनी मसल बना बना के, जो एक बात होते हैं ना आईने जिनमें डिस्टॉर्ट करके आप हाथ उठाएं तो ऐसा लगता है जैसे आपके मसल जो है वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे हैं, तो वो काम हम करना ज्यादा पसंद करते हैं और उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ी दरार सोशल मीडिया की वजह से पड़ी है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि सोशल मीडिया पे वो लोग भी मौजूद हैं जो हकायक नहीं सुनना चाहते, जो गालियां देते हैं हकायक बयान करने वालों को। तो इसका मतलब ये है कि जिसको हकीकत की तलाश है उसके लिए अब हकीकत ढूंढना पहले से आसान हो गया है। तो अगर 1960 की दहाई में भी कुछ ऐसी आसानी होती तो शायद वो लोग जो खड़े होकर ये कहते थे कि भाई ये गलत राह पे मत चलो, आपको वो हबीब जालिब की नज्म याद होगी कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। अब आइए गलत पॉलिसियों की तरफ, जिनकी वजह से हम वहां खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। 1947 में जो इलाका पाकिस्तान है इसकी शरह खानगी यानी लिटरेसी रेट था 16%। जो इलाका भारत है इसकी शरह खानगी थी 18%। जो इलाका बांग्लादेश है इसकी शरह खानगी थी 12%। 1971 में भी आजादी के वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत पसमानदा था, उनकी आबादी ज्यादा थी, उनकी फीकस आमदनी मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में 1/3 थी, उनकी शरह खानगी भी मगरबी पाकिस्तान से निस्फ थी। अब 71 से लेके अब तक 50 साल में शेख मुजीबुर रहमान ने जो विजन दिया उसके बाद और उनकी बेटी हसीना वाजिद ने जो पिछले चंद सालों में पॉलिसियां बनाई उसके नतीजे में बांग्लादेश कौमी पैदावार उसकी कई गुना बढ़ चुकी है। उसकी शरह खानगी 70 से ज्यादा है, 70% से ज्यादा। उसने अपनी बच्चियों को तालीम दी है और उनके यहाँ की जो खवातीन की शरह खानगी है वो बरसगीर में सबसे ज्यादा हो गई है और उसका यानी श्रीलंका के बाद, और वो इतनी ज्यादा है कि उसके नतीजे में उनकी मईशत तरक्की करी। वो क्यों? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, अगर 1 किलोग्राम रुई हो, कपास हो, तो वो $1 की मसलन बिकती है। अगर उसका की सूत बन जाए, यान बन जाए, तो वो $5 की हो जाती है। लेकिन अगर उस यान से कपड़ा बन जाए तो वो 15 का $20 का हो जाता है। फिर अगर उससे कपड़े बन जाएं तो कपड़े, आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने भी ढंग की कमीज पहनी हुई है, ये जिस ब्रांड के होते हैं उस ब्रांड की वजह से कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं वैल्यू एडिशन। वही रुई है जिससे ये कपड़ा बना है, लेकिन खाम रुई की कीमत और गारमेंट की कीमत उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अब आप बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की, हमारे यहाँ कुछ मफादात हैं जिनकी वजह से खाम कपास, खाम यान हम यानी बरामद कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। बांग्लादेश एक थैला, एक आउंस कपास नहीं पैदा करता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी औरतों को ये टेक्निक्स भी उनको सीना तो आता है, तो उनके यहाँ बड़ी बड़ी गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, वो लोग बैठ के कपड़े सीते हैं, मगर वो कपड़े उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक सीते हैं जो मगरबी ममालिक में लोगों को चाहिए। तो वही वो कपड़ा खरीदते हैं भारत से, पाकिस्तान से, और उसके नतीजे में वो गारमेंट बनाकर आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मवाजना करें तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं। तो उन्होंने सारी तवज्जो मईशत की बेहतरी पर दी, जिसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर दी। तालीम दो लोगों को, लोगों के लिए सहूलतें फराहम। अभी भी उनके यहाँ गुर्बत है, अभी भी उनकी जो अशराफिया है और जो एलीट है वो उतने अय्याशी के साथ नहीं रहती जितनी हमारी अशराफिया और एलीट रहती। उनकी भी बड़ी फौज है और काफी बरसगीर की तीसरी बड़ी फौज बांग्लादेश की फौज है। हालांकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि बंगाली जो हैं वो फौजी नहीं बन सकते और हमने उनको अपनी फौज में शामिल बड़ी तादाद में नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी फौज भी बना ली। लेकिन उनकी फौज ज्यादातर यूएन के पीस कीपिंग मिशंस पे जाती है, तो वहां से भी डॉलर कमा के लाती है। तो उनकी तरजीहात हमसे बड़ी मुख्तलिफ है। हमने क्या किया, हर 2-4 बरस के बाद हम किसी के साथ जिहाद करना चाहते हैं,
हम अपने यहाँ अकलियतों को नहीं बर्दाश्त करना चाहते, हम बाकी दुनिया के साथ हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ थोड़े दिन के बाद कोई साजिशी नजरिया आ जाता है कि ये फलां चीज अमेरिका की साजिश की वजह से हो रही है, फलां इसराइल की साजिश की वजह से हो रही है, फलां भारत की साजिश की वजह से हो रही है, पुराने जमाने में होता था फलां चीज रूस की साजिश की वजह से हो रही है। फिर अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीनी पाकिस्तान में ज्यादा आना शुरू होंगे, ये कहानियां शुरू हो जाएंगी कि चीन ये साजिश कर रहा है, ये हो रहा है। साजिशी नजरियों से कौम को जाहिल रखने से पाकिस्तान की शरह खानगी 16% से बढ़ के सिर्फ 52% हुई है। अब भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% का फर्क हो गया। ये तरजीहात हमने गलत रखी। हमारी तरजीहात हैं अस्करियत पसंदी, हमारी तरजीहात हैं एक खुद साख्ता नजरिए की बुनियाद के ऊपर पॉलिसियां बनाना, हमारी तरजीहात हैं जज्बातियत, हमारी तरजीह है दुनिया से लड़ना ना कि दुनिया से ताल्लुकात बनाकर रखना। और हमारी तरजीह वही है कि अपनी मसल को एक उस वाले आईने में जिसके अंदर चीज बड़ी लगती है यूं करके देख के खुद खुश होना कि दो जी हमारा डेल डोल कितना अच्छा है, हालांकि हकीकत उसके बरखिलाफ है। सर फिर भी मैं अगर भारत की बात करूं तो इन्होंने अभी कहा बाजवा साहब ने कि जिस तमाम पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ते हैं और दोस्ती करते हैं, और उसके बाद खुद ही जो है वो कभी कहते हैं कि जी हम उनसे चावल ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, कभी कुछ कहते हैं और कभी खुद ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बहुत बार पहले भी हुआ है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरह का इल्जाम आया और जो किसी हद तक साबित भी हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या गलती हुई पाकिस्तान से और क्या गलती हुई भारत से कि हम अभी तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और LOC पे मुसलसल जो है अभी भी कभी मतलब अभी इन्होंने किया हुआ है कि जी अभी सीज फायर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। आरजू, अगर आप कायदे-आज़म की सोच को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कहा था, उनसे पूछा किसी ने कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, उन्होंने कहा जी भारत और पाकिस्तान अब 2 मुल्क बन गए। वो तो कहते थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क बन गए हैं, अब हमारे ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे अमेरिका और कनाडा के। आप अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात को देखिए, उनकी बहुत तवील सरहद है, लेकिन उस सरहद पे कोई दोनों की तरफ से फौजी यानी बड़ी मौजूदगी नहीं है। उनके दरमियान कई तनाज़े हैं। बाय द वे ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं, कई तनाज़ात हैं, जिसमें कुछ तनाज़ात जो हैं वो बॉर्डर से मुताल्लिक हैं, कुछ समुद्री सरहदों के मुताल्लिक हैं। लेकिन वो तनाज़ात को पीछे रखकर इस वक्त अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारत जो है वो दोनों मुल्कों की तिजारत में सबसे ज्यादा है, बड़ी तिजारत है। अच्छा, उसके नतीजे में दोनों तरफ खुशहाली है। कनाडा वाले अमेरिका आते हैं, अमेरिका में आके कामकाज करते हैं, यहाँ डॉलर खर्च करते हैं तो वो अमेरिका को उसका फायदा होता है। अमेरिकन कनाडा जाते हैं, अपने डॉलर खर्च करते हैं, वहाँ कनाडा वालों को फायदा होता है। हमारा मसला ये हुआ कि हमने अपने आप को नजरियाती रियासत करार दे दिया। तो अगर पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है और उस नजरिए में ये बात है कि जी 2 कौमी नजरिए का एक जुज़ ये है कि ये दोनों कौमें कभी साथ नहीं रह सकती, तो ये अलग मुल्क बनने के बाद भी साथ नहीं रहेंगी। तो इसलिए एक नफरत फितरी पैदा कर दी गई। पहले भारत में इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो भी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि उन्होंने मुंबई जैसा वाकया होता देखा है, तो वो कहते हैं कि जी ये तो वहां से आते हैं, ये जो हाफिज सईद और उनके चेले हैं, लश्कर तैयबा है, क्यों बना के रखा हुआ है। मेरा ये कहना है कि जनाब लश्कर का मतलब है फौज, जैश का मतलब है फौज, सिपाह का मतलब है फौज। इस मुल्क में एक फौज बावर्दी मौजूद है, वहां ये प्राइवेट लश्कर, जैश और सिपाह होने की क्या जरूरत है, मगर ये बनाए गए। अब जनरल बाजवा कहते हैं कि वो इसको खत्म करेंगे, तो मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं कि जो सिर्फ इस वजह से कि वो कह रहे हैं मैं कहूं जी मैं उसकी मुखालफत करूंगा। मैं तो कहूंगा कि जी जनरल बाजवा ने अच्छी बात कही, बिल्कुल अच्छी बात कही, और उनकी इस बात को खुदा करे कि पाकिस्तानी फौज के अंदर भी पजीराई हो, फौज से बाहर भी पजीराई हो और बात पूरी हो जाए। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अगर हमारे पड़ोसी उसके बारे में शक की निगाह से उस बात को देखते हैं तो उसका एक तारीखी तनाजुर है। क्योंकि अयूब खान ने भी कहा था कि मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात की बात की तो भारत ने उनको मदऊ कर लिया अपने रिपब्लिक डे में, जो 26 जनवरी 1965 को उनका यौम जमहूरिया होने वाला था भारत का, उसके मेहमान खुसूसी अयूब खान साहब को होना था। लेकिन अयूब खान साहब खुद नहीं गए, उन्होंने उस वक्त के वजीर ज़राअत को भेज दिया
اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشنل جبرالٹر کیا گیا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، اور اس کے بعد 1965 کی جنگ ہو گئی. تو بھارت والے کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو تمہیں بلایا تھا اپنے یوم جمہوریہ کے اوپر چیف گیسٹ کے طور پہ، تم نے الٹا ہمارے ساتھ جنگ کر دی. پھر پاکستان کو شکایت ہے کہ جی 1971 میں بھارت نے بنگلہ دیشیوں کا ساتھ کیوں دیا، بنگلہ دیش کے لوگوں کا. بھارت والوں کا کہنا ہے بھائی ہم نے تو بنگلہ دیش والوں کا ساتھ اس لیے دیا کہ ان کے بہت بڑے تعداد میں مہاجر ہمارے یہاں آ گئے تھے. جیسے جب افغان مہاجر پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان اس کی وجہ سے افغانستان میں اپنا دلچسپی کو جسٹیفائی کرتا ہے. تو اسی طرح سے بھارت نے کیا، اور پھر انہوں نے پاکستان بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس نے ان کا خیر مقدم کیا، مخالفت نہیں کی. پھر آگے بڑھیے تو یہ کشمیر کا جہاد آ جاتا ہے. پھر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا 2001 کے یا 2002 کے شروع میں. تو اس طرح سے پھر یہ سب معاملات ہیں. تو اس کی وجہ سے بھارت ہمیں شک کی نظر سے تو دیکھے.